Good afternoon, everyone. How are you all? I hope all of you are very well, enjoying the weather and practicing at the same time. So, this is the first thing I say to all of you all the time: practice, because this is something you have to keep in head that without practice, language is somewhat difficult, right? You can understand, you can learn. Of course, learning is there, understanding is there. But when it comes to speaking, this is something very important that you keep on trying, keep on making different sentences, right? And that's why we are doing these classes. And today is the 24th day. So you should be happy that you have completed these 23 classes, and definitely you have understood a lot of things, you have learned a lot of things, and with the help of different exercises, you have practiced, right? And that's why there are different exercises for you to understand with the help of different situations, because that's how language is used. So if you talk about any sentence, right? So it simply means that you can use the same sentence in different situations. And as we understand, there are different situations. We have present, past, future, and there are so many structures. We have discussed a lot of structures, and still there are so many. So we are going to discuss all those structures. So we are going step by step. We are going step by step so that you pay attention to each and everything and you get into the habit of using all those things. Because see, learning is all about getting into the habit. So speaking language is a sort of art. So it's an art, it's a sort of a skill. And when you learn any art, when you learn any skill, so definitely it means that you need to get into the habit of doing that. So it all depends that more you do, more you learn, more you understand. And if you keep using, then you learn how to use it in different situations. And because you are using, so हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, राइट? लर्निंग फिर इजी हो जाती है, फिर लर्निंग नहीं रहती, राइट? फिर वो आपकी हैबिट बन गई. So that's why we are learning all these things. And uh, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप सिंसियरली, राइट, सिंसियरली ये लेसन्स, राइट, ये जो वीडियोस हैं, इनमें जो एक्सरसाइजेज हैं, डेफिनेटली ये आपको 100% हेल्प करेंगी इन ऑर्डर टू टेक योर लेवल टू द नेक्स्ट लेवल, राइट? लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है दैट यू आर प्रैक्टिसिंग द वे यू शुड प्रैक्टिस. अगर प्रैक्टिस वैसी नहीं हो रही है जैसे हमको करनी चाहिए, जैसे हमको एफर्ट्स लगाने चाहिए, सो डेफिनेटली रिजल्ट भी वैसे ही आएगा, थोड़ा सा कम रहेगा रिजल्ट, राइट? एंड कंफर्ट लेवल भी थोड़ा सा कम रहेगा. And if you want to be super comfortable, then it simply means that you have to pay a lot of attention, because language, it doesn't come easily. ये भी एक फैक्ट है, राइट, कि एकदम इतना इजी नहीं है, राइट? इजियर सेड देन डन, लाइक वी से. तो थोड़ा सा बोलने में इजी लगता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लेकिन हाँ, डिफिकल्ट है, बिकॉज यू नीड टू टेक लॉट ऑफ टाइम. एंड फिर इन्वायरमेंट की बात है, फिर देन देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो दैट यू नीड टू डू, राइट? Exams are there, you need to study, you need to prepare very well, because you need to score good marks, right? Right, so all those things are there. You need to do different tasks, you need to do household chores, घर के काम है, then you need to go outside, right, to do different things. So there are so many things that you do on daily basis. उसमें से टाइम निकालना, राइट, इट्स अ चैलेंज. लेकिन अगर आप मोटिवेटेड हैं, अगर आपका गोल है दैट यस, आई वांट टू बी अ फ्लुएंट person, I want to speak the language comfortably, right? So then it becomes easier for you, because goal है, right? आपका aim है,
आपको सीखना है कुछ, आपने कुछ सोच के रखा है कि हाँ दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल, ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल होगा, अभी यूज़फुल होगा, फ्यूचर में तो होना ही है यूज़फुल। एवरीवन नोज कि लैंग्वेज हर जगह यूज़ होती है। एंड जब एक बार आपकी हैबिट हो गई, आप यूज़ करने लगे, सो फिर कहाँ सोचेंगे आप कि हमने कहाँ पे क्या स्ट्रक्चर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, फिर देन इट बिकम्स वेरी इजी। लेकिन उस इजी स्टेप के लिए डेफिनेटली स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़े से एफर्ट्स तो लगाना जरूरी है, राइट? एंड दिस इज फॉर एवरीथिंग। एंड वंस यू आर कंफर्टेबल, देन यू डोंट थिंक अबाउट योर लर्निंग जर्नी। हाँ, फिर आप ऐसे बोलेंगे कि हाँ, स्टार्टिंग में जब आप किसी से शेयर करेंगे कि आपने कैसे लैंग्वेज सीखी है, कोई जब आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा कि अभी तो आप बहुत अच्छे स्पीकर हो गए हैं, यू आर स्पीकिंग वेरी वेल, यू share your thoughts very well, you talk about different situations very nicely. When you get all these compliments, then you will say that, yeah, in the starting, I put a lot of efforts, I understood things, and then it was difficult in the starting, but then because I was motivated, I wanted to be better, so that's why I practiced. फिर ये आप शेयर करें, राइट? सो इट्स लाइक दैट, राइट? लैंग्वेज लर्निंग में ये सारी चीज़ें रहेंगी। एंड किसी से भी आप ये क्वेश्चन पूछेंगे अबाउट लर्निंग के, कैसे आपने लैंग्वेज लर्न करी, कैसे प्रैक्टिस करी, तो वो डेफिनेटली सारी यही चीज़ें आएंगी कि हमने बहुत प्रैक्टिस करी, हमने बार बार ट्राई करा, हमने डिफरेंट सिचुएशंस में ट्राई करा, राइट? स्टार्टिंग में डिफिकल्ट था, देन हम करते रहे, हमारी हैबिट हो गई, फिर अब इजी हो, राइट? सो ये आपको आंसर्स हर जगह मिले, जितने भी लैंग्वेज लर्नर्स हैं वो आपसे यही शेयर करेंगे। So that's why I also keep on telling you all the time that this is something that you need to understand, right? So it's uh, better to understand it as early as possible, right? क्योंकि होना यही है, प्रैक्टिस के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट? आप ये सोचेंगे कि हम डिक्शनरी खोल के वोकेबलरी लर्न कर लें, राइट? जितनी भी वोकेबलरी लर्न कर लें, राइट, लेकिन जब तक उनको प्रैक्टिस में लेके नहीं आएंगे वो हेल्प नहीं करेगा, चाहे आप कितनी भी वोकेबलरी लर्न कर लें। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ओके? चलिए, अब जल्दी से हम बात करते हैं कि लास्ट क्लास में जो एक राइटिंग टास्क दिया था हमने, आपने आई होप वो कंप्लीट कर लिया है, आपने कुछ सेंटेंसेस यूज करके देखे। सो ये टास्क जो होते हैं वो आपको इसलिए ही हैं कि आप की प्रैक्टिस हो सके, राइट? बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि जब तक कोई टास्क नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेस रहता है, कोई टास्क मिल गया तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि हाँ चलो ये करके देखते हैं, राइट? सो इन द सेम वे, जो हमने एक टेक्स्ट लिया था मिस्टर मैजिक मैन का, वो आपने रीड किया, अंडरस्टैंड किया, उसके जो क्वेश्चंस शेयर किए थे आपसे, उन क्वेश्चंस के आपने आंसर्स दिए, ट्राई करे अपने साइड से, राइट? वहां पे आपने देखा कि कितने इजीली आंसर्स आ रहे हैं या उनमें डिफिकल्टी हो रही है। सो दिस इज ऑल प्रैक्टिस, राइट? जितना ज्यादा आप ऐसे करेंगे, you will understand in a better way. And what about how do you celebrate your birthday? How did you answer this question? कैसे करा आपने ये क्वेश्चन को आंसर? क्या आपने सेंटेंसेस यूज करे? आपने अपनी बर्थडे के बारे में कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या सेंटेंसेस यूज किए, दैट कैसे आपने सेंटेंसेस बताए that my birthday is on 21st March, for example. On my birthday, I invite all my friends. So ये simply आपको ये बताना है कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एंड ये क्वेश्चन क्यों है, ताकि आप वो सेंटेंसेस यूज करें प्रेजेंट इंडेफिनिट। बिकॉज एक जनरल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एंड देन यू आर यूजिंग ऑल दो सेंटेंसेस। आप कोई फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एंड देन यू आर यूजिंग ऑल दो सेंटेंसेस that on this festival I celebrate Diwali, I celebrate Eid, I celebrate Holi with all my friends, right? My parents invite relatives. We go to our relatives, right? We eat a lot of sweets there. I play with my cousins. There are so many things. लेकिन पॉइंट ये है कि आप उनको कैसे यूज कर रहे हैं, उनके लिए आप सेंटेंसेस कैसे यूज कर रहे हैं, राइट? सो आई होप कि आप लोगों ने ये एक्सरसाइजेस अच्छे से सिंसियरली ट्राई करके देखी होंगी। एंड कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। अगर कोई कंफ्यूजन है, देन अगेन रिमेंबर दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आप उस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन देखेंगे कि हाउ टू
make a sentence if you are thinking about something. If you want to say something, how to say that thing, right? So if there is someone in your family who can help you, take the help from that person, right? If there is someone among your friends, आपके friends में से कोई है जो आपको help कर सकता है, आपके sentences सुन सकता है, right? आपसे आप उनसे share कर सकते हैं, share, right? Share करिए उनसे, right? So keep doing all these things because all these things are very helpful, right? ये सारी चीजें लर्निंग का पार्ट है, जितना ज्यादा आप ऐसे करेंगे, राइट, उतना ज्यादा आपकी लर्निंग होती रहे। ओके, सो चलिए, फर्स्ट ऑफ आज हमारा 24th डे है एंड 24th डे में आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। आई विल शो यू एंड दोज क्वेश्चंस सिंपली इट इज अ काइंड ऑफ टास्क. You will see the question and you will simply answer the question. So question is there, you will read the question, understand the question, and you are giving your answer, okay, as per the question. This we will do first, and then next we will do something related to regular and regular verbs. So यहाँ पे हम understand करेंगे आज कि regular and irregular verbs से हम क्या समझते हैं and किन situation में हम use करेंगे इनको, right, क्या होते हैं. Okay, so this we are going to do in today's class. First off, uh, अगेन इम्पोर्टेंट पार्ट कि हम अपनी लर्निंग को एनालाइज करते रहेंगे. लर्निंग को कैसे एनालाइज करते रहेंगे कि हम जो आज हमारा, फॉर एग्जाम्पल आज हमारा 24th डे है, सो हमारी 23 डेज की लर्निंग कैसी रही, कितने हम कंफर्टेबल हो गए, कहाँ पे कंफ्यूजन है, कहाँ पे क्वेश्चन है. सो यू नीड टू एनालाइज ऑल दीज थिंग्स, राइट, ताकि आप थोड़ा सा अपने प्रोग्रेस पे ध्यान रखें, राइट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको ये देखना है कि जो हमने लर्निंग करी उसका हम कितना रिजल्ट दे रहे हैं, राइट. सो इसने ऐसा नहीं है कि बस हमने क्लास अटेंड कर ली, हमने सुन लिया, हमने एक्सरसाइज देख ली, ट्राई कर लिया, उसका रिजल्ट, रिजल्ट इन द सेंस ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस, इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग, राइट, वो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है. सो हमारा टारगेट जो है वो स्पीकिंग ही है विद द हेल्प ऑफ दीज डिफरेंट थिंग्स, राइट. ये जितनी भी चीजें हम डिफरेंट कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस, स्ट्रक्चर्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सिचुएशन की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द स्पीकिंग पार्ट, राइट. चलिए, अभी हम क्या करेंगे, यू विल सी सम डिफरेंट questions, and I will not give you any answer. You will do by yourself. In between थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिंट दूंगा, थोड़ा सा हेल्प कर लेंगे, राइट, ताकि आपको आइडियाज मिल जाएं. अदरवाइज वेरी सिंपल एक्सरसाइज. ओके, सो चलिए, आई शो यू दिस पेज. ओके, आई एम शेयरिंग दिस पेज विथ यू. जल्दी से ये एक्सरसाइज करेंगे, ट्राई करेंगे. जहां पे भी आप क्वेश्चन देखेंगे वहां पे पॉज करके आंसर देंगे जल्दी से, एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड. पॉज, answer the question, and then move forward. If you think that you can add some extra sentences from your side, then it is wonderful. अगर ऐसा करते हैं तो wonderful, okay. And simple question का आंसर दे रहे हैं तो you can do that also. And remember, if you see any question that is related to yes no question, so then give both the answers. Practice के लिए दोनों आंसर दे के देखिए. You can give yes answer, you can give no answer. Try both the questions, okay. So here is the first question for you. Answer it. You can say yes, you can say no. You understand that it's a yes no question. You will pause and you will answer the question, and then you will move forward, okay. पहले pause करके answer करेंगे question का, फिर आगे बढ़ेंगे. Answer this question. Understand the question. क्या sense है question का? This is important. यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा सा इस question का आंसर ट्राई करते हैं. Does your mother drive a car? Yes, my mother drives a car. No, my mother doesn't drive a car. Okay. Possibility, you can also say yes, she, mother की बात हो रही है, so you can use she also. Yes, she drives a car. No, she doesn't drive a car. She rides a scooty. So you have added one sentence from your side. She drives a scooty. Okay. No, she doesn't drive a car. You can also try the short answer.
Does your mother drive a car? Yes, she does. No, she doesn't. Okay, so there are so many options that you can use, but the idea is that you have to use. Try करके देखना. Okay, next one. Understand the question and then give the answer. And if you can give the reason, because यहाँ पे reason भी हो सकता है, right? So reason दे के देखिए, try करके देखिए answer. And it would be wonderful if you practice these questions with someone, someone who is with you. Maybe your friends, maybe someone from your family. If you practice these questions with them, then you will get a proper response, right? You will understand in a better way. Otherwise, if there is no one, koi nahi hai, to just stand in front of the mirror and answer these questions. Okay, now as you are seeing, this is WH word question. So, how will you answer it? So simply you will tell, okay, what do you do in the evening? So there are a lot of things you do in the evening. सारी चीजों को जल्दी से बोल दीजिए. Answer this question. Okay, what do you do in the evening? In the evening, I do this, I do that, I do this, I do that. So say everything, whatever. Okay. All right. Answer this question. Where does your father work? My father works in this office. My father works in a bank. My father works in a school. My father works in a shop, right? My father works in the market, right? Anything, whatever you want to say. My father is a farmer, right? At what time do you go to school? यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, so mention time. At what time do you go to school? Pause, answer. Simple answer, right? I go to school at 8 o'clock in the morning. Okay, I go to school at 8 o'clock in the morning, but these days I go to school at 9 in the morning. Right? I go to school at 6 a.m. I go to school early in the morning. Right? Answer this question. Short answer, long answer, yes answer, no answer. What do you have in breakfast? So whatever answer is, you can try. Yes. What do you have in breakfast? For example, I have poha in breakfast. Okay. I have chola puri in breakfast, right? I have maybe idli sambar in breakfast. Or you can say, I don't have breakfast, right? I take lunch, right? And I have lunch in the school. But it's important to have breakfast if you go to school, right? That is important. Okay, answer this. Does your brother go to school? Okay, you can say yes, you can no. And if you say no, then what does he do? फिर वो क्या करते हैं? Say that thing. Okay. For example, no, my brother doesn't go to school. No, he doesn't. He goes to college. No, he doesn't. He works. He works in the shop. He works in a bank, right? Okay, whatever you want to say. He studies in the college. Yes, he goes to school. He goes to this school, name of the school. All right, answer this. So these are simple questions and answers. Okay, and जल्दी से practice करेंगे answers देने की, question को देखने की. So again, this is practice for you, right? कि आप question देख रहे हैं, क्वेश्चन पे भी ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है. अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछना है तो फिर आपको भी ऐसे क्वेश्चन फॉर्म करना पड़ेगा. अगर आप अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ विल यू आस्क दिस क्वेश्चन? यू विल आस्क क्वेश्चन लाइक दिस. डज योर फादर रीड न्यूज़पेपर? राइट. सो अगर आपके फ्रेंड आपके साथ हैं, फैमिली में से कोई है, तो एक रोल प्ले करिए शॉर्ट. ओके, शॉर्ट रोल प्ले करके देखिए उनके साथ. आप क्वेश्चन पूछिए, फिर वो क्वेश्चन आपसे पूछें. देन डू लाइक दिस, डू अ स्मॉल रोल प्ले, राइट, विद समवन.
So your friend is asking, how do you come to school? And then you are answering. How will you answer? Auto, bus, I walk, I walk to school. पैदल चल के जाता हूँ. I walk to school, right? You can answer it. I come school by bus. My father drops me. मेरे father drop करते हैं, right? That way. Okay, answer it. Yes, no. Or you can say something else. No, I don't watch TV in the evening. I play with my friends in the evening. Okay, so whatever you want to say, for that you need a sentence and you are practicing with the help of the sentence that you want to use. Why? Why do you come to school? Give the reason, right? Why do you come to school? So your teacher is asking you this question. You are in your class and your teacher is asking you this question. Why do you come to school? Okay, what is your answer? So you will give the reason. Why, क्यों, right? You will say yes. I come to school to study. Simple answer, right? I come to school to study. You will not say I come to school to play, right? You will not say I come to school to play. I come to school to study, right? Then you will say something else also, because my aim is this, because I want to be an engineer, I want to be a businessman, I want to be a doctor, I want to be a farmer, right? So that's why I come to school. I want to get knowledge. There are so many things. Try all those things. Okay. Okay. Last one. When does your sister come back from school? Answer this question. Okay. So for example, ये भी situation हो सकती है that your sister doesn't go to school. Okay, so इस situation में भी answer दे दीजिए, right? How will you answer that? My sister doesn't go to school, right? She works in the office, right? She works in the school. She is a teacher, right? So you can give any answer. And if your sister goes to school, then you can tell the time. My sister comes back at 4 in the evening. My sister comes back at 3 in the evening. So whatever, right? जैसा आंसर होना है वैसे आंसर ट्राई करके देखिए. सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं, राइट, ये आपको क्या हेल्प कर रहे हैं? ये आपको हेल्प कर रहे हैं कि प्रॉम्प्टली आंसर दें, राइट? सो यू सी द क्वेश्चन एंड you quickly try to answer the question. Okay, and again, this is a sort of practice that you need to keep on doing continuously, right? And again, it is important that if there is someone okay, who can practice with you, you can do a small role play related to these questions. Do that. Okay, you will enjoy that part, right? Because अकेला थोड़ा सा थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, राइट, बोरिंग हो जाता है. बट इफ यू हैव समवन, इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि ये जो क्लास आप देखें. ओके, सो इफ देयर इज समवन, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है, जहाँ पे फिर यू कैन प्रैक्टिस टुगेदर, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है. और अगर ऐसा सिचुएशन है कि कोई भी नहीं है, देन यू हैव टू डू अलोन. लेकिन प्रैक्टिस तो करनी है, चाहे कोई है तब भी, कोई नहीं है तब भी, बिकॉज विदाउट दैट थिंग्स आर डिफिकल्ट. ओके, चलिए. ऑल राइट, नेक्स्ट पार्ट जो हम देखेंगे, वो हम देखेंगे कि हम रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स के बारे में अब बात करेंगे. ओके, एंड रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? वेरी सिंपल टॉपिक, राइट, इजी टू अंडरस्टैंड. बस थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि व्हाट डू वी मीन बाय रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. ओके, सो जैसे हमको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जितने भी वर्ब्स होते हैं, राइट, अगर हम वर्ब्स की बात करें पहले, राइट, अगर हम वर्ब्स की बात करें तो हमको ये आइडिया होना चाहिए कि वर्ब्स जो हैं, जो वर्ड्स हैं, वो हमको एक्शन बताते हैं,
right? Present में action, past में action, future में action. That's why we use verbs, right? Because we want to talk about action. It could be in present, it could be in past, it could be in future. Okay. अब जैसी सिचुएशन होगा वैसे हमको वर्ब का रिक्वायरमेंट होगा. ओके. सो जैसा अंडरस्टैंडिंग हमको ये क्लियर रखनी है कि मोस्टली मेजरली जब वर्ब्स की बात होती है तो उनके फॉर्म्स की बात होती है, एंड वहाँ पे जब फॉर्म्स की बात होती है तो हम बोलते हैं कि वर्ब्स के थ्री फॉर्म्स होते हैं: फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. इसको हम V1 भी बोलते हैं, V2 भी बोलते हैं, V3 भी बोलते हैं. V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म. ओके. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ब के फॉर्म्स हमको पता होना चाहिए. पता होना चाहिए, ये सिंपल सा ये टास्क है कि आपको याद करने पड़े. ओके, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं. ये हमको फॉर्म्स याद करने ही पड़ेंगे, राइट? कोई भी वर्ब है, हर वर्ब के थ्री फॉर्म्स होंगे, एंड जैसी सिचुएशन होगी वैसे आप उसको यूज करेंगे. तो अभी जब हम रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या रेगुलर वर्ब्स होते हैं, क्या इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमको ये ध्यान में रखना है कि हर वर्ब के थ्री फॉर्म्स होते हैं. कहीं पे हम प्रेजेंट फॉर्म्स यूज करेंगे, कहीं पे पास्ट, कहीं पे सेकंड फॉर्म, कहीं पे थर्ड फॉर्म. वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा. ओके. सो यहाँ पे ये जो तीनों फॉर्म्स हैं वो आपको मेमोराइज करना है विथ स्पेलिंग. स्पेलिंग के साथ मेमोराइज करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि एक वर्ब का हमेशा ये फॉर्म रहेगा. जैसे वर्ब होगा उसका फॉर्म चेंज होता रहता है. ओके. सो चेंज होता रहता है, इट मीन्स स्पेलिंग भी चेंज होगी, प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होगा. तो आपको स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान देना है, राइट? सो यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट, पहला पॉइंट जो है, वहाँ पे वर्ब के थ्री फॉर्म्स होते हैं: फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं. ओके, सबके फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे. ये सारे हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म्स हैं, सारे ये एक्शन वर्ड्स हैं: प्ले, वॉक, आस्क, मैरी, क्राई, स्टडी. एंड यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म्स हैं. ओके. एंड यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म्स हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म्स हैं. वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म को हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं. अभी आगे जाके हम इसको और देखेंगे. अभी हम ये देख रहे हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय रेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? तो एक सिंपल सा पॉइंट है कि कोई भी वर्ब है उसका सेकंड या थर्ड फॉर्म होगा. तो सेकंड थर्ड फॉर्म के लिए आप क्या देख रहे हैं? प्ले में हमने ईडी लगा के उसका सेकंड फॉर्म बना लिया, ईडी लगा के हमने थर्ड फॉर्म बना लिया. ओके. ऐसे ही वॉक है, आस्क है, मैरिड है, क्राइड है, स्टडीड है. तो इन सारे वर्ब्स में क्या कॉमन है? इन सारे वर्ब्स में ये पॉइंट कॉमन है कि सारे ही वर्ब्स के सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में लास्ट में ईडी आ रहा है, राइट? सो दिस इज द कॉमन पॉइंट. ओके. इन द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ दीज वर्ब्स दैट दे एंड विथ ईडी. ये ईडी पे एंड हो रहा है, एंड ये आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है कि प्ले का सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है. क्राई अगर कोई वर्ड यूज हो रहा है तो उसका सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है. ओके, विथ स्पेलिंग. जैसे आप देख रहे हैं क्राई में यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज है, मैरी में स्पेलिंग चेंज है. क्या चेंज है? कि हम वाई को रिमूव करके उसमें आई ई डी ऐड कर रहे हैं, आई ई डी ऐड करके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बना रहे हैं. ओके. सो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जितने भी वर्ब्स जिनके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में ईडी आए वो सिंपली रेगुलर वर्ब्स कहलाए. सो रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में ईडी आए. सिंपल पॉइंट. ऐसे वर्ब्स जिनके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में, वर्ब्स दैट एंड विद ईडी इन देयर सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स, दे आर एज रेगुलर वर्ब्स. उनको हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं. किनको बोलते हैं? जिनके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में ईडी आए. तो ये अब आपको याद करना है. ओके. ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं, बहुत सारे कॉमन वर्ब्स हैं जो हम यूज करते हैं, जिनमें आप देखेंगे कि सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में ईडी आएगा. फॉर एग्जाम्पल, लाफ. लाफ, हंसना, वर्ब है, इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी, लाफ्ड, लाफ, राइट? विच काइंड ऑफ वर्ब इज इट? इट इज रेगुलर, राइट? क्यों रेगुलर है? बिकॉज इसके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में ईडी आ रहा है.
राइट। सो ऐसे वर्ब्स जिनके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में ईडी लग के आए वो हमारे लिए रेगुलर वर्ब्स हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ईडी लगना है? ये आपको याद कर, जितने भी ऐसे कॉमन वर्ब्स हैं, राइट, जिनको आप यूज करते हैं, सो अभी उन्हीं को पे ध्यान देंगे जिनको हम यूज कर रहे हैं, जो हमारे सेंटेंसेस में यूज हो रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं कि हम सारे ही वर्ब्स की लिस्ट बना लेंगे एंड उनके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म नहीं, जैसी रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे सेंटेंसेस में यूज हो रहे हैं, वर्ब्स सिचुएशन के हिसाब से यूज हो रहे हैं, उन वर्ब्स पे ध्यान देंगे एंड उनके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग हमको होनी चाहिए, राइट, वो हमको मेमोराइज होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। सिंपल, जिनके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी लग के बने वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट ये समझ लीजिए कि इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। अब वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू वी मीन बाय irregular verbs. There are a lot of verbs that don't end with ed in their second and third forms. बहुत सारे verbs ऐसे हैं जिनके second and third form ed लग के नहीं बनते हैं, उनके फॉर्म्स अलग हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये सारे ही verbs फर्स्ट फॉर्म में हैं। ओके, लेकिन देखिए इनका सेकंड फॉर्म इज डिफरेंट, यहाँ पे ये ईडी लग के सेकंड फॉर्म्स नहीं बन रहे। तो मतलब क्या है? ये मतलब हमको याद रखना है, याद करना है कि कम का सेकंड फॉर्म केम, कम का सेकंड फॉर्म केम है, स्पेलिंग पे ध्यान देना है। एंड कम का थर्ड फॉर्म फिर से कम हो गया। ओके, सो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे ये आपको याद रख, यू हैव टू मेमोराइज कि कम के थ्री फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कम। ओके, लाइक दैट, कीप verbs रखना। ओके, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म इज kept. ओके, kept. लूज, ओके, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लॉस्ट, स्पेलिंग चेंज हो गई, LOST, लॉस्ट। ओके, ब्रेक, ब्रेक, इट इज अ वर्ब, राइट, सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। व्हाट यू हैव टू डू, ये आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है। ओके, एंड स्पेलिंग भी मेमोराइज करना है एंड प्रोनाउंसिएशन भी मेमोराइज करना है कि ब्रेक सेकंड फॉर्म इज ब्रोक, थर्ड फॉर्म इज ब्रोकन। सो प्रोनाउंसिएशन रहेगा ब्रोक एंड ब्रोकन। ओके, ब्रेक इट मीन्स तोड़ना, किसी को चीज को टूटना या तोड़ने के सेंस में यूज करें। ओके, रीड, सिंपल सा वर्ड है, रीड इट मीन्स पढ़ना। ओके, एंड इसके तीनों फॉर्म्स में स्पेलिंग सेम। ओके, सो स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं। अब हम ये देख रहे हैं कि रीड स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं है, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में प्रोनाउंसिएशन चेंज रहेगा। सो रीड का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा? आप इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे जैसे लिखा हो रेड। ओके, सो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन रीड का क्या है? रेड। स्पेलिंग यही रहेगी। ओके, स्पेलिंग चेंज नहीं करना है, स्पेलिंग सेम है, READ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इज रेड। ओके, अब ये देख रहे हैं आपके ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये आपको याद रखने हैं। ओके, ये मेमोराइज करने हैं। एंड मेमोराइज करने का बेस्ट तरीका क्या है कि जैसी सिचुएशन में सेंटेंस यूज हो रहा है उसको वहां पे उसका सेकंड फॉर्म यूज करिए। एंड अभी जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो और क्लियर होगा कि कैसे हमको यूज करना है। ओके, कहाँ पे हमको ये सेकंड फॉर्म्स यूज करने हैं, okay? वहां पे और क्लियर हो जाए। ओके, सो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है। ओके, डू, डिड, डन, ईट, एट, ईटन। Okay, so second form is at, third form is eaten. Cut, again, cut. So यहाँ पे स्पेलिंग भी सेम है एंड प्रोनाउंसिएशन भी सेम। सो प्रोनाउंसिएशन में भी कोई चेंज नहीं है, कट को हम कट ही यूज करेंगे, कट इट मीन्स काटना, उस सेंस में यूज कर रहे हैं एंड थ्री फॉर्म सेम। ओके, एंड प्रोनाउंसिएशन भी सेम। सो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि कहीं पे फॉर्म्स सेम हैं, राइट, कहीं पे चेंज हो रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी ईडी नहीं आ रहा है। इनके सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में कहीं पे भी ईडी नहीं आ रहा है। सो ऐसे वर्ब्स, राइट, दे डोंट एंड विथ ईडी, राइट, इन देयर सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स। जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में ईडी पे एंड नहीं होते हैं वो इरेगुलर वर्ब्स हैं। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो ये जो पॉइंट है कि क्या कौन से वर्ब्स रेगुलर हैं कौन से इरेगुलर हैं, वहां पे क्या समझना है हमको
ऐसे वर्ब्स जिनके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में ईडी आ रहा है, ईडी एंड हो रहा है, ईडी पे एंड हो रहा है, ओके, वो वर्ब्स हैं रेगुलर वर्ब्स। एंड ऐसे वर्ब्स जिनके फॉर्म्स ईडी पे एंड नहीं हुए, अब देख रहे हैं आपके यहाँ पे कहीं पे सेम है, कहीं पे डिफरेंट है, कहीं पे सेकंड फॉर्म में स्पेलिंग चेंज हो गई, फिर थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ही हो गया, राइट। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, लेकिन सिंपल सा पॉइंट है कि यहाँ पे ईडी पे एंड नहीं हो रहा है, एंड वी कॉल देम इरेगुलर वर्ब्स। ओके, एंड ऐसे वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स हैं। क्लियर? कि जब यूज करेंगे तो और इजी टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे टू टाइप्स के वर्ब्स हम डिस्कस कर रहे हैं, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट समझना वो ये है कि वर्ब्स के थ्री फॉर्म्स होते हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म्स हमको मेमोराइज करने हैं, लर्न करने हैं, राइट। जैसे सेंटेंस होगी, सिचुएशन होगा, उसको हमको उसी तरह से यूज करना है। ओके, चलिए मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स शो कर रहा हूँ, और ये वर्ड्स देखिए जरा, एंड आप लोग ट्राई करेंगे कि, चलिए पहले एक मिनट में आप लोग को शो करता हूँ। ओके, पहले हम ये वर्ड्स देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स में स्पेलिंग्स इंपॉर्टेंट है। ओके, स्पेलिंग्स इंपॉर्टेंट है, तो स्पेलिंग पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स आप लोगों से यहाँ पे इसलिए शेयर कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे ये देखिए कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनमें ई ऑलरेडी लगा हुआ है, एडेड है, तो वहां पे हमको फिर एक्स्ट्रा ई डी नहीं लगाना है। okay? वहां पे सिर्फ डी लगाना है। सो जैसे क्लोज, क्लोज्ड, लाइक, लाइक्ड, लिव, सो ये सारे जितने वर्ड्स हैं इनमें सिर्फ ई डी लग के सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बन जाएगा, राइट। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, लिसन, इसमें हम ईडी लगा के लिसन, कुक में ईडी लगा के कुक्ड, लुक, लुक्ड, कॉल, कॉल्ड, सो ये सारे ही रेगुलर वर्ब्स हैं। एंड इनमें सारे में देख रहे हैं हम कि ईडी लगा के हम सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बना रहे हैं। सो जैसी सिचुएशन में आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है, वैसे हम यूज कर लेंगे उस वर्ब को। ओके, एंड उसमें बस ध्यान ये रखेंगे कि हमारी स्पेलिंग हमको सेकंड फॉर्म पता हो, थर्ड फॉर्म पता हो, तो वैसे ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर लें। ओके, सो अभी जो हम सिचुएशन करेंगे, ओके, नेक्स्ट क्लास में, वो सिचुएशन में हम सेकंड फॉर्म्स यूज करेंगे। ओके, सो सेकंड फॉर्म्स यूज करेंगे तो इट मींस कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो उसके सेकंड फॉर्म का स्पेलिंग हमको ध्यान में होना चाहिए, हमको प्रोनाउंसिएशन ध्यान में होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग। ओके, एंड देन बिकॉज सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है, सो इट सिंपली मीन्स दैट यू विल टॉक अबाउट पास्ट सिचुएशन, हम किसी पास्ट सिचुएशन के बारे में बात करना चाहते हैं, बात करेंगे, सेंटेंस यूज करना चाहते हैं, उस सिचुएशन में हम उसको यूज कर रहे हैं। सो अभी जो हमारा आज की क्लास का जो मोटिव है वो सिंपल सा ये है कि अभी हम ये समझ लें कि रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। ओके, एंड वर्ब्स के थ्री फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट, कुछ वर्ब्स में ईडी लगता है, कुछ वर्ब्स में ईडी नहीं लगता, उनके फॉर्म्स कंप्लीटली चेंज रहते हैं, कभी सेम हो जाते हैं, कभी सेकंड फॉर्म में स्पेलिंग चेंज हो जाती है, थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म की तरह हो जाता है। ये जो सारे चेंजेस हैं यू हैव टू कीप इन हेड, एंड इसके लिए आपको इनको वर्ब्स को ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है इन द सेंस कि उनको याद रखना है कि कहाँ पे किस सिचुएशन में क्या यूज होना है, एंड स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है। ओके, सो ये सारे वर्ड्स देख रहे हैं, इनमें हम सिंपली ईडी लगा के सेकंड एंड थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे। ओके, जहाँ पे ई ऑलरेडी है वहां पे सिर्फ डी लगाना है। सो ऐसा नहीं कि क्लोज में डबल ई लगा रहे हैं बिकॉज ई डी लगाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि जितना ज्यादा हम यूज करेंगे, जितने ज्यादा हम सेंटेंसेस यूज करेंगे, उनको यूज करने से हमको आइडिया मिलता रहेगा। ओके, चलिए, नाउ सी दिस वन।
Okay, I need to open this one. चलिए ये लिस्ट देखेंगे हम एंड यहाँ पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे कुछ और वर्ब्स हैं एंड इनके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स यहाँ पे आपको ट्राई करने हैं खुद से ओके कि इन वर्ब्स के सेकंड एंड थर्ड फॉर्म की क्या आपको अंडरस्टैंडिंग है क्या स्पेलिंग हो फॉर एग्जांपल बी जो है बी जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन में इज आर एम के फॉर्म में यूज होता है ओके सो जो बी का फॉर्म है वो है प्रेजेंट सिचुएशन में इज आर एम सो मोस्टली आप देखेंगे कि ब्रैकेट में बी रहेगा और अगर आपको उसका फॉर्म यूज करना है सो इट्स मींस इज आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ओके एंड सिंपल पास्ट हो जाएगा उसका वॉज एंड वर एंड थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं ओके सो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीन हो जाएगा ओके सो दीज ऑल थिंग्स आर अबाउट अंडरस्टैंड ओके अबाउट मेमोराइजिंग कि आप कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे अभी तो सिर्फ हम ये देख रहे हैं अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कहाँ पे यूज करेंगे अभी हम ये देख रहे हैं कि ये वर्ब्स के फॉर्म्स हैं एंड फॉर्म्स अलग अलग हैं स्पेलिंग्स चेंज हैं एंड इनमें से कुछ रेगुलर वर्ब्स हैं कुछ इरेगुलर वर्ब्स हैं हमको कैसे पहचानना है रेगुलर वर्ब्स जहाँ पे ईडी लग के आएंगे वो रेगुलर वर्ब्स हैं ईडी लग के नहीं आएंगे वो इरेगुलर वर्ब्स हैं अभी आपने कुछ वर्ड्स देखे वो सारे रेगुलर वर्ब्स थे जहाँ पे हम ईडी लगा के उनको सेकंड थर्ड फॉर्म में यूज कर रहे हैं कहीं पे ई ऑलरेडी लगा है तो वहां पे सिर्फ डी लगा रहे हैं ओके एंड कुछ ऐसे वर्ब्स भी होंगे जहाँ पे आप वाई को रिमूव करके आई ई टी लगाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल देखा मैरी MARRY सो वहां पे आप सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म वाई को रिमूव करके IED लगाएंगे ये कौन से वर्ड्स होंगे जिनके लास्ट में वाई आ रहा है एंड वाई के साथ कॉन्सोनेंट आएगा जैसे ट्राई हो गया क्राई हो गया फ्राई हो गया ओके ये सारे वर्ड्स में हम वाई को रिमूव करके IED लगाएंगे ये जब हम यूज करेंगे तो इजी हो जाएगा राइट देयर वी विल सी ओके यहाँ पे आपको क्या अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है कि ऐसे कितने वर्ब्स हैं यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं इनके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म की आपको क्या अंडरस्टैंड ओके सो फॉर एग्जांपल बिकम बिकेम बिकम बिगिन बिगैन बिगन ओके सो यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं पे भी बिकॉज ये सारे वर्ब्स कौन से वर्ब्स हैं जैसे हम इनके फॉर्म्स से देख रहे हैं फॉर्म से पता चल रहा है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं आ रहा है तो दे आर इरेगुलर वर्ब्स ओके सो फॉर एग्जांपल बाइट बाइट मीन्स काटना ओके काटना बाइट अब अच्छा कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं कि जो नाउन्स भी होते हैं वर्ब्स भी होते हैं सो बाइट उसी में से एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन भी है वर्ब भी है बाइट का मीन्स काटना भी है और बाइट सिर्फ प्रोसेस ऑफ बाइटिंग भी राइट जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे कोई एक बाइट दे दो राइट मतलब एक पीस दे दो प्रोसेस ऑफ बाइटिंग राइट गिव मी वन बाइट ऑफ एप्पल ओके राइट तो बस एक पीस राइट लाइक दैट वो यहाँ पे बाइट प्रॉपर काटने के सेंस में भी है ओके सो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बाइट बिट बिटन बिट बिटन सो अब देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है बिट बिटन अगर बिटन है बिट है व्हाट इज द स्पेलिंग BIT बिट BITTEN बिटन सो दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग ओके फॉर्म्स जो हैं वो लर्निंग मेमोराइजिंग एंड स्पेलिंग पे ध्यान करना ओके ब्रेक ब्रेक हम वर्ड देख चुके हैं ब्रोक ब्रोकन ब्रिंग ब्रिंग ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ब आपको पता है कि दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ब्रिंग brought brought okay bring brought build what is the second and third form built PUILT PUILT okay so ये जो कुछ verbs हैं इनके आप forms देखिए second and third forms try to find out the second and third forms right second and third forms try करिए find out करने के how will you find out simply you can find out with the help of dictionary when you open the dictionary you try to search the word begin right just in front of begin you will see the second and third form also begin began begun you can also find out second and third form using Google right there are a lot of dictionaries you may find there Cambridge dictionary Macmillan there are so many dictionaries right you can simply type the word right keep begin any word and you will find out
the second and third forms with spellings. And if you are using Google, then you can also see the pronunciation. You can also listen to the pronunciation of that particular word. So pronunciation भी आप सुन सकते हैं. Okay. So there is a one icon related to volume. वहाँ पे click करिए. You can listen to the pronunciation also. How to pronounce that word. Okay. राइट. सो ये ट्राई करेंगे. उससे ट्राई करेंगे, थोड़ा सा आइडिया मिलेगा जब उससे ट्राई करेंगे. इसमें से कुछ वर्ड्स हो सकता है आपको उनके फॉर्म्स पता है. राइट. सो अच्छी बात है, पता है. अगर नहीं है पता, सो देन ट्राई टू फाइंड आउट दी फॉर्म्स. फॉर्म्स पता करिए. एंड इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड. एंड मीनिंग भी फाइंड आउट करिए. Okay, so find out the meaning and find out the pronunciation, find out what is the spelling in second and third form. How will you use a second and third form, right? Correctly, with the help of spelling, with the help of pronunciation. Okay, so अभी आप ये देख रहे हैं कि हम रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स, राइट. सो यहाँ पे एक सिचुएशन जहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म्स यूज करेंगे. We will see that situation in the next class, right? How to use a second form in that situation. Okay, and how will you make sentences? How will you make different sentences related to this situation where we use third forms? So कुछ situation ऐसी होंगी जहाँ पे हम second form use करेंगे, कुछ situation ऐसी हैं जहाँ पे हम first form use करेंगे, कुछ situation ऐसी हैं जहाँ पे हम third form use करेंगे. Okay. ओके. फर्स्ट फॉर्म तो आपको पता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, हम यूज कर चुके हैं, राइट. फॉर एग्जांपल, जब हमने मॉडल वर्ब हैज टू हैव टू किया, वहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म यूज किया, आई हैव टू गो, राइट. जब हम डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, राइट, वहाँ पे हमने सेंटेंस में यूज करा जब हमने अपना डेली रूटीन शेयर करा. I get up early in the morning, I go to school, I play with my friends, I watch TV. So in all these situations, you are using verb first forms. There are some sentences जहाँ पे आप first form में as, es and ies भी ऐड कर रहे हैं, right? And ये कहाँ पे situation है? ये present indefinite में daily routine में situation है when you use singular subject, right? When you use singular subject, right? There you add एस ई एस अकॉर्डिंग टू द वर्ड, वर्ड के अकॉर्डिंग. वो हमने देखा था कि कहाँ पे ई एस एस आई एस ऐड करना है. बट यू एड, ओके, एस ई एस आई एस इन वर्ब फर्स्ट फॉर्म रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट सिचुएशन. जब आप किसी का डेली रूटीन, जब आप किसी की हैबिट्स की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर गोज टू स्कूल, my mother prepares lunch in the afternoon, my mother prepares breakfast in the morning, my father goes to office. So यहाँ पे goes, prepares, right, cooks क्यों यूज कर रहे हैं? Because you are singular subject, right? So ये भी ध्यान में रखना है. ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे एस ई एस क्यों. Why? Because the situation is different. That's why you are adding एस ई एस आई एस, right? चलिए, ठीक है. आई होप दिस मच इज क्लियर, एंड वी विल सी that how to use second forms in the coming class, right? How to use, make sentences, use sentences related to that situation where we use a second form in our sentences, right? And again, this is also important, right? जैसा प्रेजेंट इंडेफिनेट पार्ट जो था इम्पोर्टेंट था, कितनी सारी सिचुएशंस में यूज हो रहा है. जैसे हमने एग्जांपल्स भी देखे कि डेली रूटीन में, हैबिट्स में यूज हो रहा है, राइट, स्टोरीज में यूज हो रहा है. इफ यू आर ट्राइंग टू नरेट अ स्टोरी, इफ यू आर ट्राइंग टू टेल अ स्टोरी, देयर you are using present indefinite. You are asking questions, right? अभी हमने जैसे कुछ क्वेश्चंस देखे स्टार्टिंग में, प्रैक्टिस करी थोड़ी उन क्वेश्चन से. सो यू सी, we use it a lot, present indefinite. In the same way, we use a lot past indefinite. And there, when we talk about past indefinite or simple past, there we use verb second forms. Okay. And then
what kind of meaning comes out when we use, we will see all these things in the coming class. All right, so coming class में ये सारे doubts clear हो जाएंगे. Okay, and you will be more confident how to use second forms, right? What is that situation where we make sentences with the help of second forms? Okay, so you will understand all these things in the second class, and then you would be able to talk about past, right? फिर आप past में भी comfortable हो जाएंगे, right? So this is all about understanding and using things as per the situation, making sentences as per the situation. All right. I hope that this much is clear. And यहाँ से हम next class में continue करेंगे. Remember that you have to keep on practicing. Okay. जितनी भी exercises हैं, जितने भी videos हैं, हर video में कुछ ना कुछ exercise है related to different situation. So whenever you are free, when you have some time, just watch that video, just take that exercise from any of the videos, right? कोई भी video, right? Take any exercise from that video and just quickly practice, right? Quickly practice, quickly answer some questions, or quickly do that exercise. Okay, so that way you are practicing, and जितना ज्यादा ये करेंगे उतना ज्यादा beneficial, right? So don't think कि आपने एक बार कर लिया है तो फिर से नहीं करना, नहीं, फिर से करिए उसको, बिकॉज जितना करेंगे उतना ज्यादा आपकी हैबिट हो रही है, उतना ज्यादा आप सेंटेंस को बार बार देख रहे हैं, उसका फॉर्मेशन देख रहे हैं, आप उसकी सिचुएशन देख रहे हैं कैसे यूज हो रहा है, एंड दिस इज ऑल अबाउट इट, राइट? ये ऐसे ही यूज होना है लैंग्वेज को. सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. Do it as much as possible. Okay, and this much for today. We will continue in the next class. Okay, and again, tell your friends about these classes, practice with them, and there are other classes also going on, so you can also tell your friends or tell your family members about all these different classes. Okay, you may ask them to watch the videos of these different classes and hmm, uh, learn the lessons, different lessons. Okay, this much for today, everyone, and we are going to meet in the next class. And till then, keep on practicing.